السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مشکور شمسی رحمانی۔ آج مرخہ 4 جون ہے، پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آئیے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالتے ہیں۔ بھارت کی اعلیٰ آئی ٹی کمپنیوں نے عالمی سست روی کو شکست دی۔ ٹی سی ایس، وپرو اور ٹیک مہندرا نے امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں کئی سالہ معاہدے حاصل کیے۔ یہ بھارت کی $250 ارب کی ٹیکنالوجی آف سروسنگ کی صنعت میں قیادت کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کی وطن واپسی پر حیدرآباد میں زبردست استقبال۔ شہر بھر میں پوسٹرز، پاکستان کے خلاف 2 ٹوک پیغام۔ دوربین میں دیکھیے تفصیلات۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل چوہان کا بڑا بیان، کہا آپریشن سندور نے نئی لکیر کھینچ دی، پاکستان 8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک گیا۔ آج دوربین سے دور تک دیکھیں گے اس سلسلے میں انہوں نے مزید کیا کچھ کہا ہے۔ کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندھی کا وزیر اعظم مودی پر سنگین الزام، کہا ٹرمپ کے فون پر مودی نے ہتھیار ڈال دیے۔ 1971 کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اندرا گاندھی نے 7واں بحری بیڑا دیکھ کر بھی پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ یوکرین کا بڑا حملہ، خفیہ آپریشن میں روسی زیر قبضہ پل کو دھماکے سے نقصان پہنچایا گیا۔ 1100 کلو گرام TNT پانی کے نیچے استعمال، SBU کا دعویٰ، پل دشمن کی رسد کا راستہ تھا، نشانہ بنانا جائز تھا۔ بھارت برطانیہ تعلقات میں نئی جان، دفاع، گرین انرجی اور تجارت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آزاد تجارتی معاہدہ جلد مکمل کرنے پر زور۔ سائبر سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی میں اشتراک گہرا ہوگا۔ جنوبی کوریا کے نئے صدر لی جی میونگ نے مارشل لاء کے بحران سے ملک کو نکالنے اور معیشت کو مضبوط بنانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے شمالی کوریا سے بات چیت اور امریکہ کے ساتھ سیکورٹی اتحاد کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ انتخابات میں 49.42% ووٹ ملے، جو 1997 کے بعد سب سے زیادہ شرکت ہے۔ بھارت 6 برسوں میں پہلی بار مدعو نہیں، اپوزیشن جماعت کانگریس نے کہا کہ G7 اجلاس میں بھارت کو مدعو نہ کیا جانا امریکہ کو بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی اجازت دینے کی غلطی کے بعد ملک کے لیے ایک اور بڑا سفارتی دھچکا ہے۔ یوکرین کی طاقت بڑھانے کے لیے برطانیہ آیا سامنے، 1 لاکھ ڈرون دینے کا اعلان۔ برطانیہ نے یوکرین کو اپریل 2026 تک 1 لاکھ ڈرون دینے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا رخ واضح کر دیا ہے۔ جرمنی بھی بڑی تعداد میں یوکرین کو لانگ رینج کی میزائل دینے کا اعلان کر چکا ہے۔ برطانیہ کا بڑا اعلان، کہا یوکرین کو اپریل 2026 تک 1 لاکھ ڈرون فراہم کیے جائیں گے۔ جنگ میں نئی طاقت کا اضافہ، یوکرین کو مغربی حمایت جاری۔ برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے اربوں ڈرون وارفیئر میں یوکرین کو برتری، روس کے خلاف کارروائیاں تیز۔ برطانیہ 4.5 ارب اور جرمنی 5 ارب پاؤنڈ کی فوجی مدد دے گا۔ آئیے اب خبروں کو فکر نظر ٹی وی کے دوربین کی مدد سے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ بھارت کی بڑی آئی ٹی سروسز کمپنیاں کئی سالوں کے معاہدے کر کے عالمی مارکیٹ میں اپنی برتری ثابت کر رہی ہیں۔ بھارت کی $250 ارب کی ٹیکنالوجی آؤٹ سروسنگ انڈسٹری نے منگل کو یہ دکھایا کہ وہ عالمی سطح پر اپنی قیادت برقرار رکھنے میں کامیاب ہے۔ ملک کی 3 بڑی آئی ٹی کمپنیوں یعنی TCS، وپرو اور ٹیک مہندرا نے امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی روایتی مارکیٹوں میں کئی سالوں پر محیط معاہدے کیے ہیں۔ یہ کامیابیاں ایسے وقت میں آئی ہیں جب عالمی سطح پر طلب میں کمی اور کاروباری آمدنی کی رفتار سست ہونے کے بارے میں تشویش پائی جا رہی تھی۔ TCS جو بھارت کی سب سے بڑی سافٹ ویئر سروس آؤٹ سروسنگ کمپنی ہے، جس نے برطانوی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی خدمات کا معاہدہ بڑھایا ہے۔ وپرو اور ٹیک مہندرا نے بھی امریکہ اور یورپ میں اہم کلائنٹس کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کیے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کمپنیوں کی خدمات کی مانگ مستحکم ہے۔ یہ معاہدے بھارت کی آئی ٹی صنعت کے لیے خوش آئند ہیں، کیونکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عالمی منڈی میں بھارتی کمپنیوں کے ساکھ اور اعتماد بڑھ رہا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے پوسٹر شہر بھر میں دیکھے گئے ہیں۔ یہ پوسٹر ان کی حیدرآباد واپسی کے بعد لگائے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ BJP MP بائی چانٹ پانڈا کی قیادت میں واپسی سمیت ایک آل پارٹی وفد نے الجزائر، سعودی عرب، کویت اور بحرین کا اپنا دورہ مکمل کیا۔ یہ وفد پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد مرکزی حکومت کی طرف سے کیے گئے آپریشن سندور کی کامیابی کو اجاگر کرنے اور پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے گیا تھا۔ جو
पोस्टर लगाए गए उनमें ओवैसी के बारे में कई नारे दर्ज हैं, जिनमें दहशतगर्दी के खिलाफ एक आदमी, पाकिस्तान के खिलाफ एक सच, हिंदुस्तान के लिए फख्र के साथ दुश्मन को बेनकाब करना शामिल थे। अपने दौरे के दौरान वफ्द ने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों को 22 अप्रैल के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हिंदुस्तान के रद्द-ए-अमल से आगाह किया और सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ जामे लड़ाई को उजागर करते हुए अहम ममालिक के रहनुमाओं के साथ बातचीत की। अलजायर के दौरे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर बड़ी तनकीद करते हुए उसे तकफीरियत का मरकज करार दिया। अलजायर के मीडिया थिंक टैंक के अरकान और डायस्पोरा से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप और दाइश और अलकायदा के दरमियान कोई नजरियाती फर्क नहीं है। पाकिस्तान तकफीरियत का गढ़ है और पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह दाइश और अलकायदा के दरमियान नजरियात में कोई फर्क नहीं है। उनका मानना है कि उन्हें मजहबी इजाजत हासिल है, जो कि सरासर गलत है। इस्लाम किसी इंसान के कत्ल की इजाजत नहीं देता। बदकिस्मती से यही उनका नजरिया है। ओवैसी ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में वापस डालने के लिए अपने मुतालबे को भी दोहराया है। ओवैसी ने कहा कि दहशतगर्दी दो चीजों पर जिंदा रहती है, नजरिया, पैसा। आइडियोलॉजी आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने तारीख दिहाई देखी है, यहाँ तक कि जुनूबी अलजायर में भी आपको कुछ मसाइल दरपेश हैं। इस मौके पर हम साथ हैं। एक बार जब आप पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट यानी FATF में डाल दिए गए तो हम हिंदुस्तान में दहशतगर्दी में कमी देखेंगे, हम कत्ल में कमी देखेंगे। हमारे पास 2018 का तज्जिया है, जब अलजायर और दीगर ममालिक ने हिंदुस्तान की मदद की थी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जनूबी एशिया का सवाल नहीं है, हम चौथी बड़ी मईशत हैं। क्या होगा कि आप चाहते हैं कि ये तमाम कत्लेआम जनूबी एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाए? नहीं, पाकिस्तान को कंट्रोल करना आलमी अमन के मफाद में है, जो दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। इसे वापस FATF की ग्रे लिस्ट में डालना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अली चौहान ने मंगल को कहा कि पेशावराना फौजें आर्जी नुकसानात से मुतासिर नहीं होती, क्योंकि मजमूई नताइज इस तरह के नुकसानात से कहीं ज्यादा अहम होते हैं। आला फौजी कमांडर ने कहा कि पाकिस्तान भारत को हजारों जख्म देकर खून बहाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, लेकिन नई दिल्ली ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ बिल्कुल नई लक्ष्मण रेखा खींची है। सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी में अपने खिताब में जनरल चौहान ने इस तनकीद को मुस्तरद कर दिया, जिसका वो एतराफ कर रहे थे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के इब्तदाई मरहले में गैर मुतय्यना तादाद में लड़ाका तैयार खो दिए। उन्होंने कहा कि जब मुझसे हमारी तरफ से होने वाले नुकसानात के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि ये अहम नहीं है, बल्कि नतीजा और आप किस तरह अमल करते हैं ये अहम है। एक सवाल के जवाब में चौहान ने कहा कि नुकसानात और तादाद पर बात करना दुरुस्त नहीं होगा। CDS का कहना है कि जंग में नुकसान होने के बावजूद आपको अपने हौसले को बरकरार रखना होगा। उन्होंने कहा कि नुकसानात अहम नहीं बल्कि नताइज अहम है। सियासत और तशद्दुद समेत जंग के मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत करते हुए जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी जंग और सियासत मुतवाजी तौर पर हो रहे हैं। उन्होंने पहलगाम हमले से चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का भी जिक्र किया, इस बात पर जोर देने के लिए कि इस्लामाबाद का नुक्ता नजर हिंदुस्तान का हजार जख्म देकर खून बहाने का है। जनरल चौहान ने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इंतहाई जुल्म था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान से रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को रोकना था और मुल्क को, हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने मंगल को इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान पाकिस्तान फौजी तनाज़ुर दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फोन के बाद सरेंडर यानी हथियार डाल दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी 1971 की जंग में अमेरिका की तरफ से 7वां बहरी बेड़ा भेजने के बावजूद पीछे नहीं हटी। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान का आगाज करने के बाद राहुल के एक्स पर पोस्ट किया, ट्रंप की तरफ से कॉल आई और नरेंद्र जी ने फौरन हथियार डाल दिए। तारीख गवाह है, ये बीजेपी RSS का किरदार है, वो हमेशा झुकते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर ने मजीद लिखा कि मैं बीजेपी RSS के लोगों को जानता हूं, अगर आप थोड़ा सा दबाव डालें और उन्हें हल्का सा धक्का भी दें तो वो खौफ से भाग जाते हैं। राहुल ने कहा कि भारत ने अमेरिका धमकी के बावजूद 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस के बबर शेर और शेरनी सुपर पावर से लड़ते रहे, वो कभी नहीं झुके। राहुल ने कहा कि 1971 की जंग के दौरान
कोई फोन कॉल नहीं आई। अगरचे 7वां बहरी बेड़ हथियार और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज पहुंच गया। इंदिरा गांधी ने हथियार नहीं डाले और कहा वो जो चाहे करेंगी। लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने कभी हथियार नहीं डाले, वो सुपर पावर से लड़े। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू ने कई माह के खुफिया ऑपरेशन की मदद से मंगल के दिन एक ऐसे पुल को निशाना बनाने का दावा किया है जो रूस के कब्जे में है। एसबीयू की जानिब से दावा किया गया है कि इस ऑपरेशन में टीएनटी नामी धमाका खेज मवाद के 1100 किलोग्राम जितना मवाद इस्तेमाल करते हुए पुल को सहारा देने वाले सुतूनों को पानी की सतह के नतीजे को नुकसान पहुंचाया गया। एसबीयू के इस दावे की आजादाना तस्दीक नहीं की जा सकी है। एसबीयू ने यह दावा भी किया कि पहला धमाका किसी आम शहरी को नुकसान पहुंचाए बगैर किया गया। इधर रूसी मीडिया की जानिब से इब्तिदा में बताया गया था कि इस पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, ताहम बाद में यह खबर दी गई है कि इसे खोल दिया गया है। इसी दिन मकामी हुक्काम ने एक बार फिर शहरियों को खबरदार किया कि यह पुल, जैसे क्रीमिया पुल कहते हैं, आर्जी तौर पर बंद है। रूस की जानिब से ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर इस बारे में अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया। ताहम अस्करी उमूर पर तज्जिया करने वाले रूसी ब्लॉगर्स ने इस शक का इजहार किया है कि यह धमाका एक ऐसे ड्रोन के टकराने से हुआ है जो पानी के नीचे काम करता है। यूक्रेन के खुफिया इदारे एसबीयू के मुताबिक इस कार्रवाई की मनसूबाबंदी और निगरानी इदारे के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेसेली ने खुद जाती हैसियत में की। इस हमले के दौरान ड्रोन ट्रकों से उड़ाकर रूस के मुतअद्दिद फिजाई अड्डों पर मौजूद रूसी बमबारी तैयारों को निशाना बनाने का दावा भी किया गया। भारत और बरतानिया ने 30 जून को नई दिल्ली में होने वाली एक अहम मीटिंग में अपने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इस बातचीत में दोनों ममालिक के खारजा सिक्योरिटियों ने दिफाई इंसदाद, दहशतगर्दी, ग्रीन एनर्जी और तजारत जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने दिफाई शोबे में अपने ताउन को मजीद बढ़ाने का आज़म किया। इसमें साइबर सिक्योरिटी, इंसदाद, दहशतगर्दी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन शामिल है। मजीद बना दोनों फरीक ने दिफा और सलामती के मुख्तलिफ पहलुओं पर बाहमी ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि यह मीटिंग इसलिए भी अहम समझी जा रही है क्योंकि मोदी हुकूमत 11 साल मुकम्मल कर रही है। इस मीटिंग में मोदी हुकूमत के वज़रा के काम काज और कामयाबियों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ तमाम वज़रा अपने महकमों के काम के साथ मुताल्लिक प्रेजेंटेशन भी देंगे। ज़राए के मुताबिक जल शक्ति वज़रात और कुछ दीगर वज़ारतें भी मीटिंग में अपने काम काज के बारे में भी प्रेजेंटेशन देने वाली है। पीएम मोदी ने अपनी काबीना के तमाम वज़रा को हिदायत दी है कि वो आवाम के दरमियान जाएं और उन्हें गुज़श्ता 11 सालों की तमाम कामयाबियों के बारे में बताएं। जनूबी कोरिया के नए सदर ले जी मेविंग ने बुध के रोज वादा किया कि वो मुल्क को मार्शल लॉ की नाकाम कोशिश से पैदा होने वाली बहरान से निकालेंगे और आलमी सतह पर बढ़ते हुए तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के बावजूद मुश्किल हालात में मईशत को बेहतर बनाएंगे। मंगल को होने वाले हंगामी इंतखाब में ले जी मेविंग की शानदार फतह एशिया की चौथी बड़ी मईशत में नुमाया तब्दीली लाने वाली है। चूँकि 3 साल कबल मार्शल लॉ की नाकाम कोशिश की वजह से सदर यून सॉक योल के इख्तिदार से हटा दिया गया था। कई बड़े चैलेंजेस का सामना है जिनमें मुल्क को मार्शल लॉ की वजह से पैदा होने वाले जख्मों से निकालना और अमेरिका की जानिब से बढ़ते हुए तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के गैर मुतवक्के इक़दामात से निपटना शामिल है। अमेरिका जनूबी कोरिया का अहम तिजारती साथी और सिक्योरिटी इत्तेहादी है। सदर बनने के बाद पार्लियामेंट में हलफ उठाते हुए कहा कि ले जी मेविंग हुकूमत हकीकत पसंद और मार्केट दोस्त होगी। कनाडा 15 से 17 जून को अल्बर्टा सूबे में G7 सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें रूस यूक्रेन जंग और मगरबी एशिया की सूरत हाल जैसे अहम मसाइल पर बात होगी। ये बात मालूम हुई है कि इस बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, जो पिछले 6 सालों में पहली मर्तबा हो रहा है। आमतौर पर मेज़बान मुल्क इजलास के मेहमानों को मदऊ करता है और एजेंडा तैयार करता है, जिसकी बुनियाद पर इजलास का रुख तय होता है। इस बार भारत को G7 इजलास में मदऊ नहीं किया गया है और मोदी के कनाडा दौरे की कोई इत्तला भी नहीं है। भारतीय वज़रात ख़ारजा के तर्जुमान ने भी बताया था कि मोदी का इस इजलास के लिए कोई मनसूबा नहीं है। माजी में वो लगातार 6 सालों तक G7 इजलास में शिरकत करते रहे हैं, मगर अब ये पहला मौका है जब भारत इससे बाहर रहेगा। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग में अब यूक्रेन को मगरबी ममालिक से बड़ी हिमायत मिल रही है, जिससे उसकी ताकत में नुमाया इजाफा हो रहा है। हाल ही में यूक्रेनी फौज ने रूस की सरहद में 5000 किलोमीटर अंदर घुसकर एक बड़ी कार्रवाई की, जिससे दुनिया भर की तवज्जो उस पर मरकूज हो गई।
इसी दौरान बरतानिया ने ऐलान किया कि वो अप्रैल 2026 तक यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन फराहम करेगा। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि ड्रोन्स ने जंग के अंदाज को बदल कर रख दिया है और यूक्रेन को उनसे जबरदस्त मदद मिल रही है। इसी वजह से बरतानिया ने ड्रोन सप्लाई 10 गुना बढ़ाने का फैसला किया। बरतानिया की इस हिमायत से पहले जर्मनी ने भी यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल फराहम करने का वादा किया था। बरतानिया उन ममालिक में शामिल है जो जंग के आगाज से ही यूक्रेन के साथ खुलकर खड़े हैं। बरतानवी वजीर दिफा जॉन हेली जल्द ही इस इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे जिसके तहत 4.5 अरब पाउंड की फौजी इमदाद दी जाएगी। इसमें ड्रोन्स के अलावा भारी मिकदार में गोला बारूद भी शामिल होगा। इधर जर्मनी ने भी 5 अरब पाउंड की फौजी इमदाद देने का ऐलान किया है ताकि यूक्रेन तवील फासले के मिसाइल तैयार कर सके। जर्मनी का कहना है कि रूस से निपटने के लिए यूक्रेन को इस जदीद हथियार की जरूरत है और हम इसकी पूरी मदद करेंगे। ये इमदाद यूक्रेन के लिए इस वक्त बहुत अहम है क्योंकि वो रूस से सख्त मुकाबला कर रहा है। मगरबी मुल्कों की ये हिमायत यूक्रेन को जंगी पैदावार में इजाफा करने और अपनी दिफा को मजबूत बनाने में मदद दी गई। नाजरीन, दूरबीन पर तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है @फिक्रो-नज़र। अगर अब तक आपने फिक्रो-नज़र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि बर वक्त आपकी आवाज़ आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। La